Good morning, student. Today we start National Commission. The central government can establish National Commission by notification of redressal of disputes of consumers. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नेशनल कमीशन को इस्टेब्लिश करती है कंज्यूमर के डिस्प्यूट्स का redressal करने के लिए. Its full name shall be National Commission of Redressal of Consumer Disputes. The following are the main provision. In previous video, we study about District Commission and State Commission. More than 1 crore of consumer complaint is filed in National Commission. Composition ये बनता कैसे? It consists of 5 members. 1 member is the chairman. इसमें 5 member होते हैं. एक member chairman होता है. Who is or has been a Supreme Court judge, जो एक Supreme Court के जज होता है. 4 other member must be experienced, well-to-do and well-renowned in their region. Out of these members, 1 will be a female member और इन 4 other member में 1 member female होना चाहिए. Term of office. The term of office of all the members is 5 year to 70 year of age, whichever is less. No member shall be reappointed. जो इनका टर्म होता है ऑफिस का वो 5 ईयर का होता है या 70 ईयर, जो दोनों में से कम हो. और इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो रीअपॉइंटेड नहीं होते. जिनको एक बार अगर नेशनल कमीशन में 5 ईयर वर्क कर लिया तो उनको वापस से फिर रीअपॉइंट नहीं किया जाता है. सैलरी एंड अलाउंसेस. सैलरी अलाउंसेस एंड होनोरियम सर्विसेज कंडीशन एक्सेट्रा आर फिक्स्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. इनको जो सैलरी है अलाउंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है. इसको केसेस ऑफ कंप्लेंट pertaining to more than 1 crore are considered by the National Commission. Appeals against the judgment of State Commission are also eligible for hearing in this court. इस कोर्ट में more than 1 crore के केसेस और किसी को स्टेट कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट अगर कंप्लेन करना हो तो वो केसेस यहाँ पर फाइल किए जाते हैं. Hearing process. The process of hearing the complaints and appeals of the complaints received in same as followed by a district forum or state commission. जो हायरिंग की प्रोसेस होती है वो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के जैसे ही होती है. अवार्ड और जजमेंट. The order is given by National Commission is the same way as the given by district forum. An appeal against the judgment of National Commission can be filed in the Supreme Court within the 13 days. अगर कोई पार्टी नेशनल कमीशन के जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर आने के 30 डेज़ के विदिन अपना फिल कर सकती है अपनी अपील को. तो आपको तीनों कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन विथ कंपोजिशन, टर्म, सैलरी अलाउंसेस, हियरिंग प्रोसेस और अवार्ड ऑफ जजमेंट के जैसे 5 पॉइंट में लर्न करना है, डिटेल में लर्न करना है. अब पेनल्टीज कौन कौन सी है. इफ़ अ ट्रेडर और अ पर्सन अगेंस्ट whom a complaint is lodged fail to comply with any order or instruction of the district forum, state commission, national commission, he shall be liable for imprisonment up to their 3 years but not less than 1 month, or fine up to 10,000 but not less than 2,000 or both. जो भी ट्रेडर है जिसके अगेंस्ट कोई कंप्लेन हुई है उस कंप्लेन के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है डिस्ट्रिक्ट फोरम ने, स्टेट फोरम ने या नेशनल कमीशन ने, उसमें उन्हें इम्प्रिजमेंट यानी जेल हो सकती है,
3 ईयर की मैक्सिमम, बट 1 मंथ से कम की नहीं होना चाहिए। फाइन अप टू द 10,000 बट नॉट लेस देन 2,000, कम से कम इतना फ़ाइन होता है। इस तरीके से पेनल्टीज़ दी जाती है। यूटिलिटी ऑफ द कंज्यूमर काउंसलिंग और फोरम, ये जो हमने कंज्यूमर काउंसलिंग और फोरम पढ़ी है, इनकी यूटिलिटी क्या है? द ओनली एम ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज़ टू बी प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। To serve this purpose, consumer counseling or forum is established. Before the establishment of counseling, the suit are filed by the consumers as civil suit, which takes lot of times to get disposed of. Also filing a suit again included much of proper formalities which every consumer can't afford to him. अगर कोई सिविल कोर्ट में अगर कोई सूट फाइल करता है तो उसकी जो पेपर फॉर्मेलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और कंज्यूमर उसको एफर्ट नहीं कर पाता है। प्रेजेंटली द पर्पस इज सर्व्ड बाय अ काउंसिल विच डिस्पोजेस द मैटर इन द कंपेरेटिव शॉर्टर टाइम, और कंज्यूमर को कम समय में जो मैटर है उनका डिसीजन हो जाता है। फीलिंग a complaint require less expenditure on the part of consumer too, as now he himself can represent his case. There is no need to appoint any advocate. यहाँ पर कंज्यूमर को जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है, स्टेट कमीशन है, नेशनल कमीशन में अगर कोई कंज्यूमर कोई सूट फाइल करता है तो उसे कोई तरह का एडवोकेट हायर नहीं करना पड़ता है। Hence, the consumer is saved out of complex legal provision and is assured proper justice. तो उसको कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोविज़न से बच जाता है, प्लस उसको प्रॉपर जस्टिस मिलता है। कंक्लूज़न, द कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 not only provide protection to the interest and rights of the consumer but also make available cheap and speedy जुडिशियल डिस्पोजल एंड जस्टिस। उसको चीप और स्पीडली डिसीजन मिलता है, जस्टिस मिलते हैं। विद द पासिंग ऑफ दिस एक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ केसेस हैव बीन फाइनलाइज्ड, क्योंकि इनकी प्रोसेस फास्ट होती है, चीप होती है, तो कहीं सारे केसेस ये फिनिश्ड कर सकते हैं। कंज्यूमर हैव गेन एडिक्वेट कंपनसेशन, कंज्यूमर को एडिक्वेट कंपनसेशन मिल जाता है ऑन द वन हैंड, एंड द सेलर हैव बिकम अलर्ट इन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द अदर, क्योंकि सेलर को पता है कि कंज्यूमर अवेयर है, अगर उसने किसी भी तरह से कंज्यूमर को चीट किया तो उसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट हो सकती है। अब नाउ cases eligible for complaint and their settlement. For redressal of consumer grievances, the Consumer Protection Act provides for setting up 3-tier enforcement machines at the district, state and national level. हमने अभी स्टडी करा है। The consumer can file complaint for matters related to hair. If the complaint has suffered by any loss due to the misbehavior or improper conduct of the business, अगर कोई misbehavior हुआ है, कोई improper conduct of business हुआ है, तो उनकी कंप्लेन यहाँ पर फाइल हो सकती है। If there are one or more complaint in the related goods, कोई गुड्स में एक या एक से ज़्यादा कंप्लेन हो। If there are one or more defect in द हायर्ड सर्विसेज, अगर जो सर्विसेज हायर की है उनमें कोई एक से ज़्यादा कंप्लेन हो। इफ़ मोर देन द एक्चुअल प्राइस हैज़ बीन चार्ज, जब किसी सेलर ने एक्चुअल प्राइस से ज़्यादा चार्ज किया हो। इफ़ फैटल गुड्स और गुड्स अगेंस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ हैव बीन सोल्ड, अगर कोई फैटल गुड्स, कोई ऐसे गुड्स जो लाइफ के अगेंस्ट हो, जो लाइफ को प्रोटेक्शन के अगेंस्ट हो, वो बेच दिया हो किसी ने, तो कंज्यूमर फोरम में अप्लाई हो सकता है केस। प्रोसीजर ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट,
डिस्प्यूट की प्रोसीजर क्या होती है? द फोरम अडॉप्ट द फॉलोइंग प्रोसीजर फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स on the receipt of complaints received against the seller and service agencies. First, copy of complaint. A copy of complaint is dispatched by the forum to opposite party. एक कॉपी होती है कंप्लेंट की जो अपोजिट पार्टी यानी जिसके ऊपर केस फाइल किया गया है उसको भेजी जाती है. द सेलर और सर्विस एजेंसी हैज़ टू सबमिट अ रिटन रिप्लाई in the respect of complaint within the 30 days but not more than 45 days. अब जो सेलर है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, जिसके अगेंस्ट कोई फाइल आई है, उस फाइल के लिए जो सेलर है उसको 30 डेज़ का या मैक्सिमम 45 डेज़ का टाइम दिया जाता है कि जो भी उसकी कंप्लेन है उस कंप्लेन का वो रिटर्न रिप्लाई दे. लेबोरेटरी. The goods are sent for test to laboratory. The laboratory shall submit its report within the 45 days. अगर कोई ऐसी कंप्लेन है जिसमें गुड्स का लेबोरेटरी चेक करवाना है तो लेबोरेटरी टेस्ट विदिन द 45 डेज़ में उसकी रिपोर्ट आ जाना चाहिए. रिफ्यूज़ल और निग्लिजेंस. इफ़ द डिफेंडेंट रिफ्यूज द एक्सेप्ट द चार्जेस or ignores to give explanation within the stipulated time. अगर जो सेलर है वो दिए हुए टाइम में एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है, द फोरम शेल अडॉप्ट द फॉलोइंग प्रोसीजर फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट. तो जो डिस्प्यूट के सेटलमेंट की प्रोसीजर अडॉप्ट करती है. द फोरम शेल गिव अ चांस टू बोथ द कंप्लेंटेंट एंड द डिफेंडेंट टू सबमिट देयर आर्ग्यूमेंट. कंप्लेंटेंट और डिफेंडेंट जिसने कंप्लेन करी है, जिसके लिए कंप्लेन करी है, दोनों को उनके आर्ग्यूमेंट सबमिट करने के लिए टाइम देते हैं. बिफोर द फोरम आफ्टरवर्ड अ सुटेबल ऑर्डर शेल बी पास्ड. और फिर एक सुटेबल ऑर्डर पास कर देती है. ऑर्डर ऑफ द फोरम. इफ़ द फोरम इज सेटिस्फाई दैट द गुड्स सप्लाई और सर्विसेज रेंडर्ड आर डिफेक्टिव और बिलो स्टैंडर्ड. अगर फोरम सेटिस्फाई हो जाता है कि जो गुड्स या सर्विसेज सप्लाई की है वो डिफेक्टेड है या उनकी क्वालिटी बिलो स्टैंडर्ड की है और द कंप्लेंट इज़ जेन्युइन या कंप्लेंट जो है वो सही है, इट कैन डायरेक्ट द सेलर और सर्विस एजेंसी टू कंप्लाई द फॉलोइंग ऑर्डर. तो वो सेलर को फॉलोइंग ऑर्डर दे सकती है. फर्स्ट ऑर्डर इज़ टू रिमूव द डिफेक्ट ऑफ द गुड्स. कि जो सेलर है वो गुड्स का डिफेक्ट रिमूव करे यानी उसको रिपेयर करके ठीक करके दे. टू एक्सचेंज डिफेक्टिव गुड्स विथ राइट टाइप ऑफ गुड्स. राइट टाइप ऑफ गुड्स से एक्सचेंज करे, बदल के दे. टू रिफंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स टू द कंप्लेंटेंट. जो कंप्लेंटेंट है उसको गुड्स का कॉस्ट को रिफंड करे. द कंपनसेंट ऑफ कंज्यूमर फॉर द लॉस कॉजेज ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ द पार्ट ऑफ द सेलर. या कंज्यूमर को कंपनसेट करे जो सेलर ने नेग्लिजेंस किया है उसके लिए जो उसको लॉस हुआ है उस लॉस से उसको कंपनसेट दिलाती है. टू रिमूव डिफेक्ट्स ऑफ द सर्विस रेंडर. अगर जो सर्विसेज है जैसे गुड्स में कोई डिफेक्ट है वैसे ही अगर कोई सर्विसेज में डिफेक्ट है तो सर्विसेज को रिमूव करे उसके डिफेक्ट को. टू वाइंड अप एनी इम्प्रॉपर ट्रेड यूनिट्स. अगर कोई इम्प्रॉपर कोई गलत तरीके का ट्रेड यूनिट है तो उसको वाइंड अप करे, बंद करे. टू बैन द सेल ऑफ डेंजरस गुड्स. डेंजरस गुड्स के सेल को बैन करवाती है कोर्ट. तो इस तरीके से कोई सा भी ऑर्डर फोरम दे सकती है. अब नाउ रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGOs. वेरी IMP क्वेश्चन है, पूछा जाता है बोर्ड में. टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट सेवरल कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड NGOs हैव बीन सेट अप इन इंडिया. These organization provides consumer education along with motivating them to save themselves from exploitation. बहुत सारे NGO सेटअप किए गए हैं इंडिया में. ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कंज्यूमर को एजुकेट करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं टू सेव देमसेल्फ फॉर एक्सप्लॉयटेशन.
एक्सप्लॉयटेशन से अपने को सेफ रखने के लिए, बचाने के लिए मोटिवेट करते, एजुकेट करते। NGOs are those organization which aims at promoting the welfare of people. They are generally free from government interference. जो पीपल के वेलफेयर को प्रमोट करते और गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से जनरली फ्री होते। These organizations perform several functions from promoting interest of the consumers. Few functions are: first, organizing training programs, seminars and workshops to educate जनरल पब्लिक अबाउट देयर राइट। ये कुछ ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, सेमिनार करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, जिससे कि ये जनरल पब्लिक को अवेयर करते हैं। टू रेज वॉइस अगेंस्ट द कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, कंज्यूमर के एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट वॉइस रेज करते हैं। टू फाइलिंग कंप्लेंट इन अप्रोप्रिएट कंज्यूमर कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर के बिहाफ पर अप्रोप्रिएट कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करवाते। टू इनकरेज कंज्यूमर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड बाय सेलर, सेलर ने कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रखी है तो उससे कंज्यूमर को प्रोटेस्ट करवाते। कैरिंग आउट टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इन लेबोरेटरी फॉर द बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए प्रोडक्ट का लेबोरेटरी टेस्ट करवाते। प्रोवाइडिंग लीगल एड, लीगल एडवाइस टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर को लीगल एड, लीगल एडवाइस प्रोवाइड करवाते। टेकिंग इनिशिएटिव टू फाइल कंप्लेंट इन अप्रोप्रिएट फोरम, इनिशिएटिवली कंप्लेंट को अप्रोप्रिएट फोरम में फाइल करवाते। डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ कंप्लेंट, जैसा कंप्लेंट का नेचर है। अप टू 20 लाख है तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में, 20 लाख टू 1 करोड़ है तो नेशनल कमीशन में, मोर देन 1 करोड़ है तो उसको नेशनल कमीशन में फिल करवाते हैं केस को। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन NGOs वर्किंग टूवर्ड्स दीज पर्पस आर कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल दिल्ली, ये सारे NGOs के नाम है जो इंडिया में वर्क करते हैं फॉर द promote the consumer interest and save the consumer from exploitation. First, Consumer Coordination Counseling Delhi. Second, Common Cause Delhi. थर्ड, वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं VOICE। कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर अहमदाबाद CERC। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसलिंग CPC अहमदाबाद। कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया CGSI मुंबई। देयर इज़ द सम NGOs मुंबई ग्राहक पंचायत मुंबई, कर्नाटका कंज्यूमर सर्विस सोसाइटी बेंगलुरु, कंज्यूमर एसोसिएशन कोलकाता, कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी CUTS जयपुर, द सिटीज़न फोरम हुबली, कंज्यूमर एक्शन फोरम चेन्नई। तो ये कुछ NGOs के नेम हैं जो आपको ध्यान में रखना है। इजी चैप्टर है, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको आपको बुक में से ही पूरा तैयार कर लेना है, छोटा भी है और इजी भी है। तो ये चैप्टर आपको अभी जो असाइनमेंट में आपको इस सैटरडे को दूंगी, वो असाइनमेंट के साथ में आपको ये पूरा चैप्टर आपको रेडी रखना है। इजी चैप्टर है। अब in next video we start our new chapter.